صلوات پڑھ کر محمد وآل محمد. تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ تو اور اچھا ہوگا. محمد وآل محمد صلوات. آ جاؤ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ونبینا وشفیعنا ومولانا جد القلوبنا بالقاسم المحمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلوات. عزاداروں، سب سے پہلے دو تین باتیں سنیں آپ عزاداری کے متعلق. وہ یہ کہ آپ نے آج 2 مہینہ تقریباً ہوا عزاداری کی. یہ بارش کچھ نہیں، اس سے زیادہ بارش تھی، آپ نے عزاداری کی. اور آپ نے یہ وعدہ کیا، ایک زیارت پڑھتے ہیں کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ پہ اپنے ماں باپ قربان کر دیتے، آپ پہ اپنی جان قربان کر دیتے، آپ پہ اپنی اولاد قربان کر دیتے. اگر آپ بارش سے ڈر گئے یا گھبرا گئے تو پھر آپ کا یہ زیارت پڑھنا غلط ہے، یہ دعویٰ غلط ہے کہ مولا کاش کربلا میں ہوتے تو ہم آپ پہ سب قربان کر دیتے. بارش میں تھوڑی دیر بھیگیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، ماتم کریں گے، گھر جائیں گے اور گھر جا کر کے آپ سو جائیں گے. لیکن اس بہن کے بارے میں سوچیں کہ جس نے ایسی جگہ عزاداری کی کہ جہاں پہ دن میں سورج کی گرم روشنی ہوتی تھی اور رات کو اوس گرتی تھی، ایسی جگہ پہ عزاداری کی ہے بی بی نے. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، کچھ نہیں. ہم تھوڑی دیر بھیگیں گے، پھر اس کے بعد سوکھ جائیں گے، پھر اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. گھر میں جا کے ہمارے سارے انتظامات ہیں. اگر طبیعت خراب ہونے لگی، اللہ نہ کرے جناب زہرا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن اگر کچھ ہوا تو آپ کاڑھا بنا لیں گے، دوائی لے لیں گے، صحیح ہو جائیں گے. لیکن سوچیں کہ 2 سال تک جناب زینب اور دیگر خواتین جو 11 لوگ تھے، آپ کو اللہ کرے قید خانہ جانا، وہاں پہ دیکھنا نصیب ہو. عباس گیا ہے، اس نے جناب سکینہ کا روضہ دیکھا ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں، اس نے دیکھا ہے وہ جگہ جہاں پہ قید خانہ ہے. اوپر سے تھوڑا دکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کتنا خطرناک قید خانہ تھا. ایسی جگہ پہ جناب زینب نے عزاداری کی. تو یہ بارش ہماری کچھ نہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل اچھے سے ہے، تھوڑی دیر کی زحمت ہے. اس کا الٹا آپ کو ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر زمین پہ اس وقت سب سے پہلے جو بی بی آ کے بیٹھی ہے اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. دوسری بی بی کا نام ہے جناب سکینہ. تیسری بی بی کا نام ہے جناب زینب کبریٰ. چوتھی شخصیت کا نام ہے امام زین العابدین. یہ 4 شخصیتیں اس وقت یہاں بیٹھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری گناہگار آنکھیں انہیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں، ورنہ سب سے پہلے یہ معصومین آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس وقت تک نہیں جاتے جب تک فرش اعضا اٹھ نہیں جاتی. تو یہ یاد رکھیں یہاں معصومین بیٹھے ہیں. اور یہ جو بارش ہے، یہ اس وقت بارش جو ہے یہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ہم ہمیشہ پڑھتے نماز میں بھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار رحمت نازل کر ہمارے والدین پہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحمت نازل کی، یعنی ہمیں کھلایا پلایا سجایا سوارا، ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا اور ہمیں انسان بنایا.
माँ बाप की अजमत बहुत है, माँ बाप का मकाम बहुत है। वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में माँ बाप नहीं है। सबसे खूबसूरत अगर दुनिया में कोई शय है अहले बैत के बाद तो वो माँ बाप है, वालिदैन है। वालिदैन की इज्जत करें, वालिदैन की कदर करें। थोड़ा इधर आ जा बेटा, थोड़ा सा इधर आ जा। वालिदैन की कदर करें, वालिदैन की इज्जत करें। याद रखें, जिनके पास है वो इज्जत करें, जिनके पास नहीं है उनसे पूछें कि वालिदैन के ना होने का गम क्या होता है। और इसमें भी सबसे ज्यादा वालिदा के ना होने का गम क्या होता है। अल्लाह की तरफ से ये एक नेमत है मेरे नौजवानों, याद रखना। माँ बाप की इज्जत करोगे तो दुनिया में भी जन्नत है और आखिरत में भी जन्नत है। माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो इस दुनिया में भी जहन्नम है और मरने के बाद भी जहन्नम का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए कि आज जो तुम अहले बैत को मान रहे हो, ये वालिदैन की अच्छी तरबियत और माँ की अमानतदारी है जो तुम आज अहले बैत की राह पे चल रहे हो और इस फर्श अज़ा पे बैठे हो। अगर तुम्हारी वालदा तुम्हें पैदा करने पे वफा न करती तो आज तुम फर्श अज़ा पे नजर नहीं आते, आज तुम तमाशा बीनों की तरह तमाशा देखते। ये तुम्हारी वालदा की अमानतदारी है कि तुम हुसैन के फर्श अज़ा के काबिल बने। ये तुम्हारा बाप की अमानतदारी है कि उसने तुम्हें हलाल रिज़्क खिलाया कि तुम आज हुसैन की बारगाह में पहुंचे। इसलिए अपने वालिदैन की इज्जत करो। वो जब तक है अल्लाह उन्हें हयात दे, जिनके जा चुके हैं अल्लाह उन्हें जवार इमाम हुसैन में जगह अता करे। याद रखो, नेमत है वालिदैन। मैं लोगों को ये नहीं कहता कि तुम दुनियादारी मत करो, ये मत नहीं, लेकिन जो हक है वो हक है। एक बंदा रसूल खुदा के पास आया, उसने आन करके कहा, या रसूल अल्लाह बड़ा परेशान हूँ, कारोबार करता हूँ डूब जाता है, बहुत परेशान हूँ, आप दुआ कर दीजिए। आप जरा सोचें कि अल्लाह का रसूल खातिमुल अंबिया, अंबिया का सरदार, कि जो कह दे वो हो जाए, यानी जो कहता पहले है आयत बाद में बनती, वो रसूल पलट के पूछा, ये बता तेरे वालिदैन तो नाराज नहीं है? उसने कहा हाँ मेरी वालदा नाराज है। कहा जा करके माफी मांग पहले, फिर तरक्की करेगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह नहीं है, मर गई। कहा कब्र पे जा, पैताने सर रख करके माफी मांग तो तरक्की करेगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह कब्र का निशान नहीं मालूम। फरमाया अपनी उंगली से खाली जगह पे कब्र का निशान बना और जहां पैताना हो वहां पर सर रख के माफी मांग। माँ है, माँ का दिल है, तू क्या जानता है? माँ का दिल रब के दिल के जैसा है, माफ कर देगी। जब वो माफ करेगी तभी तू तरक्की करेगा। और अजीजान मोहतरम, जिसके लिए रसूल दुआ ना करें उसका क्या होगा? वालिदैन की इज्जत करें। आज वालिदैन से वालदा तक पहुंचा मैं। आज एक वालदा की शहादत की तारीख है। वालिदा कौन? वालिदा फातिमा जैसी। बेटा कौन? बेटा हुसैन जैसा। ऐसी वालिदा कि हुसैन के सर पे कंघी कर रही थी, एक बाल टूट गया हुसैन के सर का। जनाब ज़हरा ने दिन भर धूप में बैठ के गिरिया किया। पूछा बीबी क्या हुआ? कि मेरे हुसैन के सर का एक बाल टूट गया है। यही वजह है जब कैद खाने में सकीना चीख के रोई ना और जालिम ने पूछा क्या हुआ, कि बच्ची को बाप याद आ गया है। उसने कहा जाओ सर ले जा करके दे दो। एक जालिम ने उस तिजोरी में हाथ डाला जहाँ हुसैन का सर रखा था। उसने हुसैन के सर को पकड़ा, यूं घुमाता घुमाता कैद खाने में लाया। सज्जाद ने जब सर को आते देखा, गरीब कहता है क्यों तूने जहमत की? मुझे कहता मैं आता अपने बाप के सर को उठाने के लिए। तुझे मालूम है इसका एक बाल टूट गया था। मेरी दादी ज़हरा दिन भर धूप में बैठ के गिरिया कर रही
गई थी, आज उस बीबी का वो हाल किया उम्मत ने। बीबी घर में बैठे बैठे कहती अली मुझे कोई पुरसा देने नहीं आया रसूल का। अली फरमाते ज़हरा हम इतने गरीब हो गए हैं, मुझ अली को कोई देखता है तो सलाम नहीं करता। एक दिन अली घर में आए, अनकरीब था कि ज़हरा पूछती। अली को ऐसा लगा कि अगर मैंने ना में इनकार किया तो मेरी ज़हरा मर जाएगी। अली ने अपने सर का मामा उतारा, जमीन में बिछाया, बिछा के कहा ज़हरा इस पर बैठो। ज़हरा के रुखसार पे हाथ रखा, फरमाते हैं ज़हरा आप हमें पुरसा दे दे, मैं आपको पुरसा दे दूंगा। हम इतने गरीब हो गए हैं, अब मदीने में कोई हमें पहचानता नहीं। ज़हरा मैं मदीने में निकलता हूँ, लोग मुझे सलाम नहीं करते। ज़हरा मैं सलाम करता हूँ, कोई मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। हाज़िज़ो दिन गुजरा, कुछ दिन के बाद लोग आए पुरसा देने, लेकिन अंदाज ये था कि जब ज़हरा के घर में आए तो हाथों पे लकड़ियां थी, आग थे। ज़हरा के घर को चारों तरफ से घेरा, आग लगा दिया, कहा हम अली को लेने आए हैं। जनाब ज़हरा ने एक हाथ से दरवाजा बंद किया, जब सीधे हाथ से दरवाजा बंद किया, कुंडी से जनाब ज़हरा का हाथ नजर आया। जालिम ने बीबी के हाथ में तलवार की हनी से इतना मारा कि जनाब ज़हरा का हाथ टूट गया। इमाम हसन फरमाते हैं बाबा अली मेरी माँ जब तक जिंदा रही सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ती थी। अली ने ज़ैनब से पूछा बीबी क्यों रो के? ज़ैनब कहती बाबा जालिमों ने मेरे माँ की कलाई तोड़ दी थी। अली ने ज़हरा को दफन तो कर दिया, बच्चों के सामने अली नहीं रोते थे, रात के अंधेरे में कब्र पे आते थे, मुंह में कपड़ा डाल के रोते थे। अली एक दिन चीख मार के कब्र पे रोए। सलमान ने पूछा मौला क्या हुआ? रो करके कहा सलमान इन्होंने मेरी ज़हरा का हाथ तोड़ दिया था। सलमान इन्होंने मेरी ज़हरा की पसली तोड़ दी थी। सलमान हाथ तो ये कर दी, किसी ने मेरी ज़हरा के चेहरे पे ताज़ियाना मारा, तेरी चेहरा तेरी ज़हरा का रुखसार बीच से फट गया था, मेरी ज़हरा ने मुझे नहीं बताया। मातम हुसैन।